हेलो फ्रेंड्स, केजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको द एलन प्लेनेट द ग्रीन मूवमेंट रोल बाय नानी पालकीवाला सेकंड पार्ट पढ़ाएंगे। सेकंड पार्ट, आर्टिकल 48A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड दैट द स्टेट शैल endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country. What cases and less anguish is the fact that laws are never respected nor enforced in India. For instance, the Constitution says that casteism, untouchability, and bonded labor shall be abolished, but they flourish shamelessly even after 44 years of the operation of the Constitution. A recent report of our Parliament's Estimates Committee has highlighted the near catastrophic depletion of India's forest over the last 4 decades. India, according to reliable data, is losing its forest at the rate of 3.7 million acres a year. Large areas officially designated as forest land are already virtually treeless. The actual loss of forest is estimated to be about 8 times the rate indicated by government statistics. Anguish means suffering, Vedana. Bonded means restricted, बंधुआ. Abolished means repelled, हटा दिया. Catastrophic means partning to a sudden calamity, अचानक आने वाली विपत्ति. Deflection means act of exhausting, पतन का कार्य. Reliable means truthful, विश्वसनीय. भारत के संविधान के अनुच्छेद 40A के वर्णित है कि सरकार पर्यावरण की सुरक्षा करने व सुधारने का प्रयास करेगी तथा देश के वनों व अन्य जीवन की सुरक्षा करेगी। परंतु जो अत्यधिक दुख का कारण यह है कि भारत में कानून का कभी आदर नहीं किया जाता और न ही उसे लागू किया जाता। उदाहरणार्थ, संविधान कहता है कि जातिवाद, छुआछूत और बंधुआ मजदूरी को समाप्त किया जाएगा, परंतु संविधान लागू होने के 44 वर्षों के बाद भी लज्जाजनक ढंग से घोषित है। संसदीय आकलन समिति की प्रतिवेदन में पिछले 4 दशकों में भारतीय वनों की अंधाधुंध क्षति होने की बात को उजागर किया है। विश्वसनीय आंकड़ों के आधार पर भारत में जंगल 3.7 मिलियन एकड़ प्रतिवर्ष समाप्त हो रहे हैं। बड़े क्षेत्र जिन्हें आधिकारिक रूप से जंगली भूमि बताई गई है, पहले ही वृक्ष रहित वनों के क्षय की शुद्ध दर पर सरकारी आंकड़ों में वर्णित दर से अनुमानतः 8 गुना अधिक है। A 3-year study using satellites and aerial photography conducted by the United Nations warns that the environment has deteriorated so badly that it is critical in many of the 88 countries investigated. There can be no doubt that growth of world population is one of the strongest factors distorting the future of human society. It took mankind more than a million years to reach the first billion. That was the world population around the year 1800. By the year 1900, a second billion was added, and the 20th century has added another 3.7 billion. The present world population is estimated at 5.7 billion. Every 4 days, the world population increases by 1 million. Deteriorate means wasted, नष्ट किया है. Critical means सीरियस, गंभीर. डिस्टॉर्टिंग मीन्स रूनिंग, बर्बाद कर रहा। संयुक्त राज्य द्वारा सैटेलाइटों का उपयोग करके तथा हवाई चित्रों की मदद से किया गया 3 वर्षीय अध्ययन चेतावनी देता है कि पर्यावरण का इतनी बुरी तरह पतन हुआ कि जिन 88 देशों में जांच की गई है उनमें से कई की स्थिति गंभीर है। इसमें कोई शंका नहीं है कि विश्व की बढ़ती हुई जनसंख्या मानवीय समाज का भविष्य नष्ट करने वाला सबसे बड़ा कारक है। मानव समाज की जनसंख्या 1 अरब तक पहुंचने में 10 लाख से अधिक साल लगे। विश्व की इतनी जनसंख्या वर्ष 1800 के आसपास थी। वर्ष 19 को आखिर तक जनसंख्या 1 अरब और बढ़ गई और 20वीं सदी में 3.7 अरब जनसंख्या में वृद्धि कर दी। विश्व की वर्तमान जनसंख्या का अनुपात 5.7 अरब लगाया गया। प्रत्येक 4 दिन में विश्व की जनसंख्या 10 लाख बढ़ जाती है। फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम्स राइज, एजुकेशन स्प्रेड्स एंड हेल्थ इम्प्रूव्स। Thus, development is the best
contraceptive, but development itself may not be possible if the present increase in numbers continues. The rich get richer and the poor begets children, which condemn them men poor to remain poor. More children does not mean more worker, merely more people but without work. It is only suggested that human beings be treated like cattle and compulsorily sterilized, but there is no alternative to voluntary family planning without introducing an element of coercion. The choice is really between control of population and perpetuation of poverty. Contraceptive means hindering conception, गर्भ निरोधी. कंडेम मीन्स क्रिटिसाइज, निंदा करना. स्टेरिलाइज, डिस्ट्रॉइंग ऑफ बैक्टीरिया, नसबंदी. परपेचुएशन मीन्स कंटिन्यूस, निरंतरता. आय बढ़ने, शिक्षा का विस्तार होने तथा स्वास्थ्य में सुधार होने से प्रजनन दर गिर जाती है, अतः विकास की सर्वोत्तम गर्भ निरोधक है. परंतु विकास स्वयं तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक जनसंख्या परिवर्तन वृद्धि होती रहेगी. रईस और धनी हो जाता है और निर्धन लोगों के बच्चे बढ़ते जाते हैं जो उन्हें निर्धन बनाए रखते हैं. अधिक बच्चों का अर्थ अधिक श्रमिकों से नहीं है बल्कि अधिक बेरोजगार लोगों से. यह सुझावित नहीं है कि मनुष्यों से जानवरों की तरह बर्ताव किया जाए और ज़बरदस्ती नसबंदी कर दी जाए, परंतु बगैर ज़बरदस्ती के अपनी इच्छा से परिवार नियोजन अपनाने के सिवाय इसका कोई अन्य विकल्प नहीं है. असली में चुनाव जनसंख्या नियंत्रण और निरंतर निर्धनता के मध्य है. द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी 920 million today, more than the entire population of Africa and South America put together. No one familiar with the condition in India would doubt that the hope of the people would die in their hungry hutments unless population control is given topmost priority. For the first time in human history, we see a transcending concern, the survival not just of the people but of the planet. We have begun to take a holistic view of the every basis of our existence. The environmental problem does not necessarily signal our demise. It is our passport for the future. The emerging new world vision has used in the era of responsibility. It is a holistic view, an ecological view, seeing the world as an integrated whole rather than the dissociated collection of parts. Industry has a most crucial role to play in this new era of responsibility. What a transformation would be effected if more businessmen shared the view of the chairman of DuPont, Mr. Edgar S. Bullard, who 5 years ago declared himself to be the company's chief environmental officer. He said, "Our continued existence as a leading manufacturer requires that we excel in environmental performance." Of all the statements made by Margaret Thatcher during the year of her prime ministership, none has passed so decisively into the current point of English usage as her felicitous words. No generation has a freehold on this earth. All we have is a life tenancy with a full repairing lease. In the word of Mr. Lester Brown, we have not inherited this earth from our forefathers, we have borrowed it from our children. Meaning, hutments means small cottage झोपड़ियाँ. Priority means first chance, प्राथमिकता. Transcending concern means surpassing concern, बढ़ती चिंता. Demise means end of life, अंत्येष्टि. Emerging means developing ahead, उभरता हुआ. Felicitous means delightful, आनंद से. आज भारत की जनसंख्या अनुमान 920 मिलियन 92 करोड़ लगाया जाता है, जो अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका की कुल जनसंख्या से भी अधिक है. कोई भी इसे भारत की परिस्थितियों की जानकारी है. इससे प्रशंसित नहीं होगा कि जब तक जनसंख्या नियंत्रण को सर्वाधिक प्राथमिकता नहीं दी जाती तब तक लोगों की अपेक्षा उनकी भूखी खोपड़ पट्टियों में मरती रहेंगी. मानव इतिहास में प्रथम बार हम बढ़ती हुई चिंता देख रहे हैं, न केवल लोगों के जीवित रहने पाने के विषय में बल्कि ग्रह में
जीवन के विषय में भी हमने अपने अस्तित्व के आधार को संपूर्ण जीवों के दृष्टिकोण से देखना आरंभ कर दिया है। पर्यावरण की समस्या आवश्यक रूप से हमारे अंत का संकेत नहीं देती है, भविष्य के लिए हमारा पासपोर्ट है। उभरते नए विश्व के दृष्टिकोण ने उत्तरदायित्व का योग आरंभ कर दिया। अखंड विश्व का अवलोकन करना नवविच्छिन्न भागों के संग्रह के रूप में संपूर्णता का दृष्टिकोण पारिस्थितिकी दृष्टिकोण है। जवाबदारी के इस योग में उद्योग को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। क्या परिवर्तन होगा यदि अधिकांश व्यापारी लोग ड्यू पॉन्ट के चेयरमैन श्रीमान एडगर एस बुलर्स की विचारधारा को अपनाएं, जिन्होंने खुद 5 वर्ष पूर्व घोषणा की थी कि मैं कंपनी का मुख्य पर्यावरणीय अधिकारी हूँ। उसमें कहा, मुख्य निर्माता के रूप में हमारा अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि हम पर्यावरणीय प्रदर्शन के उत्कृष्ट कार्य करें। अपने प्रधानमंत्री काल के दौरान मार्गरेट थैचर के सभी दिए गए कथनों में से कोई भी अंग्रेजी भाषा में लोकप्रिय नहीं हुआ, जितने कि ये शुभ कथन किसी भी पीढ़ी को इस पृथ्वी पर स्वामित्व का अधिकार नहीं देते। हम सभी अपने जीवन काल के लिए इस पर काश्तकारी हैं, इसको पूर्णतः ठीक रखना इसका किराया पट्टा है। मिस्टर लेस्टर ब्राउन के शब्दों में, हमने इस पृथ्वी को अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में हासिल नहीं किया है, हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।